तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium or vice versa. Suppose here we have rare medium, so this light ray is coming from rare medium to denser medium. Suppose this is the water or glass, whatever you can say. Suppose this is the water. Okay, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसकी स्पीड होगी जो वाटर के अंदर हो जाएगी वो कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी की इक्वल होती है विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो उससे जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ओके, एंड वाइस वर्सा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ वाई द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज इन द डेंसर मीडियम। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट जब डिक्रीज होगी, फर्स्ट इट विल डिक्रीज, देन इट विल चेंज इट्स पाथ ऑल्सो। हाउ? Suppose it coming from rare medium to denser medium. Okay, this is denser medium, so it will bend toward the normal. So this is the normal, so this is the normal ray. So this light ray is bending toward the normal, so this is the angle of refraction. Okay, now how much it bend? Okay, this is the path of incident ray, so that much is bend na, at that much angle. Okay, so how much it deviate from its original path to refracted path. So this deviation, how much deviate, how much angle is deviated, this angle is called angle of deviation. Getting my point? Okay, so can I like this angle of incident, or this is the angle of this total angle. So both angle, this angle and this angle, both angle are equal. दोनों एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. So this angle and this angle both are vertically opposite angle. So can I write like this? Angle I is equals to angle R plus angle of deviation, correct? Because both are vertically opposite angle. Now angle of deviation will become angle I, angle R will come here. So angle of deviation become angle I minus angle R. So this is the case. This is the angle of deviation for when the light ray move from rare medium to denser medium. Okay, now here we'll talk about the denser medium to rare medium. Suppose light is coming from water to air, correct? So water से air में light आ रही है, so this light ray will bend away from the normal. Okay, this is the normal, so it will bend away from the normal. देखो यहाँ पे जो light ray थी वो normal के पास आ गई, करेक्ट। जाना यहाँ पे, अगर दिस मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं होता देन व्हाट हैपन, दिस लाइट रे विल गो दिस ब्लैक पाथ, करेक्ट, ऐसे चली जाती। बट मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यहाँ पे डेंसर से रेयर में आएगी। सो लाइट रे विल मूव बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट। सो यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस ब्लैक लाइन सजेस्ट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता so this ray will go undeviatedly like this. So it means this angle is equals to this angle. y vertically opposite angle, but ये लाइट रे थोड़ा डेविएट हो गई तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल I is equals to एंगल R minus S. How? See, this is the whole angle, so this angle R plus this angle delta, correct? So angle I will be R minus this. Why? Because this is the angle I, this is the angle R, so it will be equal to R plus this angle, correct? So angle I will become R minus delta. This whole R minus this delta will become this angle, and this angle and this angle, both angle R become equal, correct? Now when the right ray incident at normal at 90 degree, if light ray will incident at 90 degree, then this is the normal. So normal and incident ray and reflected ray all lie in same line, correct? यहीं पे इंसिडेंट रे, यहीं पे रिफ्लेक्टेड रे, और यहीं पे नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी ज़ीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो, और एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़ीरो। बट स्टिल जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी स्पीड विल डिक्रीज,
speed will decrease, correct? But speed will decrease, but angle of incident, angle of reflection and angle of deviation all become 0. Getting my point? So direction will not change. So when light move from one medium to another medium, its path will change, or path means or its direction will change, and its speed also changes. Getting my point? Now we'll go to the law of reflection. तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है अपन को कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, सॉरी, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal, they all lie in same plane, correct? How? Now this incident ray, this is reflected ray and this normal, so this lie in same plane na, in the plane of this page, correct? So this is the first law of refraction. Here we are talking about the refraction, okay? Now second law, sin I by sin r, sin I by sin r is equals to constant, and that constant is come equal to the mu. So sin r by sin I by sin r is equals to mu. So mu is the refractive index. So we can define the refractive index as a ratio of light of speed in air upon light of speed in medium. Okay, v is the speed of light in medium and c is the speed of light in air. So we can define as ratio of speed of light in air with respect to the medium. Getting my point? We can also define like this. It is the ratio of sin I by sin r, correct? Now remember this thing, okay? Now I told you that if refractive index will increase, for denser mediums refractive index is more, correct? Here mu is 1 and here mu is greater than 1, correct? Getting my point? Now if refractive index will increase, then this speed will decrease. It means कि लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, करेक्ट? रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, स्पीड कम होगा. स्पीड कम क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो म्यू 1 है और म्यू 2 है, म्यू 2 बढ़ रहा है ना, सो म्यू 2 बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो स्पीड कम हो रही है. गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मीन्स कैन आई लाइक दिस, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, करेक्ट? सो म्यू बढ़ेगा तो वी कम होगा, करेक्ट? नाउ वी नो दिस, वी इज इक्वल्स टू ऑफ लेमडा. Okay, this formula you remember, okay. Frequency, now frequency do not change. Suppose light is coming from this point to this point, so frequency यहाँ पे भी f है और यहाँ पे भी f है. Getting my point? So frequency will not change, but speed will change and wavelength will change. Why both will change? Because refractive index will change. जो frequency है ना, it depend on the source of light. Suppose करो जो light है वो sun से अर्थ पे आ रही है और वो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है या फिर किसी भी वाटर के अंदर स्ट्राइक कर रही है, तो सोर्स तो चेंज नहीं होगा ना, लाइट तो सन से आ रही है, करेक्ट? तो सोर्स विल नॉट चेंज, तो सोर्स विल नॉट चेंज, देन फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज. गेटिंग? तो v इक्वल्स टू ऑफ लेमडा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, करेक्ट? सो v विल इंक्रीज, लेमडा विल इंक्रीज, ओके. नाउ इफ लाइट रे मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्पीड विल डिक्रीज. दिस आई टोल्ड यू, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगा तो क्या होगा, स्पीड विल डिक्रीज, सो वी विल डिक्रीज. सो वी विल डिक्रीज तो अब सॉरी लेमडा विल डिक्रीज, बिकॉज वी एंड लेमडा बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा, बट फ्रीक्वेंसी स्टिल रिमेन सेम. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कम हो रहा है तो देन लेमडा विल ऑल्सो डिक्रीज, ओके. सपोज हियर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, करेक्ट? सो मीडियम ए के अंदर फ्रीक्वेंसी एफ है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, और अपन मानते हैं जो वेवलेंथ है वो लेमडा 1 है, सॉरी लेमडा है, करेक्ट? तो दूसरे मीडियम सेकंड मीडियम के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, एफ ही रहेगी, बट उसकी स्पीड होगी वो सी से वी हो जाएगी, और उसका जो लेमडा होगा, वेवलेंथ होगी, वो लेमडा डेस हो जाएगा, करेक्ट? सो कैन लाइक दिस, सी इज इक्वल्स टू ऑफ लेमडा, सी इज वॉट, स्पीड ऑफ लाइट वी है, सो वी इज इक्वल्स टू ऑफ लेमडा और सी इज इक्वल्स टू ऑफ लेमडा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. फॉर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन, सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम this c will come down, correct? So frequency will become c by lambda, correct? Here c by lambda, correct? So frequency is c by lambda. यहाँ पे भी v equals to f lambda dash, so frequency will become lambda by, so frequency will become v by, sorry, here frequency will become v by lambda dash, correct? Now here v by lambda dash, here c by lambda dash, correct? This frequency and this frequency, both frequency are equal, correct?
दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो क्या मैं इन इसको और इसको इक्वल टू पुट कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है. सो सी बाई लेमडा इक्वल्स टू वी बाई लेमडा डेस. करेक्ट. तो लेमडा डेस विल कम, लेमडा डेस कितना आएगा अपने पास, लेमडा डेस इधर मल्टीप्लाई में आएगा एंड दिस विल गो देयर एंड दिस सी देन विल कम डाउन, देन लेमडा डेस विल बी लेमडा वी बाई सी. देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने. करेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा लेमडा डेस इंटू सी इक्वल्स टू वी इंटू लेमडा. सो लेमडा डेस विल बिकम वी लेमडा बाय सी. करेक्ट. गेटिंग माई पॉइंट दिस. सो हियर लेमडा वी बाय सी. सो अब देखो अपन को पता है कि म्यू इज़ वॉट, म्यू इज़ सी बाई वी. सो मैं इस वी को नीचे लेके आऊँ, क्या मैं इस वी को यहाँ पे नीचे लेके लिख सकता हूँ सी बाई वी, और सी बाई वी की जगह मैं लेमडा लिख सकता हूँ, सॉरी सी बाई वी की जगह मैं म्यू लिख सकता हूँ. सो लेमडा डेस विल बिकम लेमडा बाई म्यू. तो कितनी वेवलेंथ विल डिक्रीज, जो वेवलेंथ जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उससे आप डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द लेमडा डेस, जो सेकंड मीडियम का जो लेमडा है वो तुम्हें मिल जाएगा. सो लेमडा डेस विल कम लेमडा अपॉन म्यू. ओके. वाई, बिकॉज सी वी को अपन नीचे ले गए, सी बाई वी क्या हो गया, म्यू हो गया. सो लेमडा बाय म्यू. ओके. नाउ वी गेट कि जो म्यू होता है वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. गेटिंग माई पॉइंट. तो म्यू होता है वो वी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और म्यू जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ refractive index depends on, so on what factor refractive index will depend. So it depend on the nature of medium और optical density. भाई मीडियम एयर के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं. करेक्ट. तो उनके अंदर लाइट विल कम easily and will not change its path. if water, I'll talk about the water, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी. करेक्ट. ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इफ़ लाइट रे विल कम इट विल बेंड बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स. करेक्ट. So it means if optical density will increase then refractive index will increase. तो सबसे ज़्यादा refractive index सॉलिड का होगा, देन लिक्विड का, उससे कम लिक्विड का होगा, देन सबसे कम एयर के अंदर होगा. दैट्स वाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ मैक्सिमम. नाउ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. वाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दीज मॉलिक्यूल्स विल मूव फर्दर फ्रॉम ईच अदर. करेक्ट. जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाएंगे, मोशन करेंगे तो दूर दूर जाएंगे. सो उससे क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी. ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, म्यू भी कम होगा. सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर म्यू विल डिक्रीज. ओके. कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. सो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो डिफरेंट स्पीड होगी डिफरेंट मीडियम में होगी, रेदर देन बस एयर के अंदर जो मीडियम जो स्पीड होती है सभी कलर्स की वो सेम होती है. तभी तो आप देखते हो कि आप प्रिज्म से लाइट को पास करोगे सो इट विल डेविएट एंड इट विल डिस्पर्ज इनटू 7 कलर्स. करेक्ट. बट एयर के अंदर वापस दे विल कम एंड मीट टू बी सेम कलर वाइट लाइट. सो दिस वाइट लाइट विल दिस वाइट लाइट वेव 7 कलर्स विबग्योर. करेक्ट. सो सभी विबग्योर की स्पीड सेम होती है तभी तो अपन को वाइट लाइट दिखती है. करेक्ट. तो वो किसी मीडियम में जाएगा तो इट विल सबकी स्पीड अलग अलग होगी. दैट्स वाई डिस्पर्जन विल टेक प्लेस. करेक्ट. नाउ स्पीड ऑफ रेड इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम एंड स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम. तो अगर रेड लाइट की स्पीड मैक्सिमम है और वायलेट लाइट की स्पीड मिनिमम है, सो वी आर इज़ ग्रेटर देन वी वायलेट. तो आपको पता है कि वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, वी इक्वल्स टू लेमडा फॉर एफ लेमडा. सो वी बढ़ेगा इसका मतलब लेमडा भी बढ़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कॉन्स्टेंट रहती है. इसका मतलब अगर स्पीड रेड लाइट की सबसे ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड लाइट का सबसे ज़्यादा होगा. दैट्स वाई रेड लाइट का सबसे ज़्यादा होगा. तो सॉरी रेड लाइट का वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होगा. अब यू नो वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. करेक्ट. तो वी ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका म्यू कम होगा. इसीलिए जो वायलेट लाइट का होगा वो म्यू ज़्यादा होगा और रेड लाइट का म्यू कम होगा. क्यों, देखो इधर देखते हैं. मैंने बोला कि स्पीड रेड लाइट की ज़्यादा होगी, इसका मतलब वेवलेंथ भी रेड लाइट का ज़्यादा होगा. क्यों, क्योंकि अपन को पता है रिलेशन वी इक्वल्स टू एफ लेमडा. सो वी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, तो स्पीड रेड लाइट की ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा. बट आई टोल्ड यू वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. करेक्ट. तो वी ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. तो इसका मतलब जिसकी स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. तो स्पीड कम किसकी होती है, वायलेट लाइट की, इसीलिए उसका वेवलेंथ सॉरी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट, है ना. तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. सो वी
inversely proportional to, sorry, mu is inversely proportional to speed, and mu is also inversely proportional to lambda, and we can say lambda and this v is directly proportional to each other. Correct. So you remember this relation. Okay, कि जो v1 by v2 is equals to lambda 1 by lambda 2 is equals to mu2 by mu1. यहाँ तक समझ आया? Okay, we'll go to the next part. Reversibility of principle, sorry, principle of reversibility. सपोज लाइट ए है, वो यहाँ ए से यहाँ आ रही है. करेक्ट. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, यहाँ पे समथिंग, सपोज दिस इज द म्यू टू, दिस इज द म्यू वन. ओके, सो म्यू टू बाई म्यू वन क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर. करेक्ट. अब म्यू टू बाई म्यू वन है और अपन को पता है म्यू इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो ये 2/1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा स्पीड का रेशियो, है ना. नाउ अभी देखो, सपोज करो लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस 2 मीडियम टू 1 मीडियम, तो ये सेम पाथ, इट विल फॉलो सेम पाथ. सो दिस विल बिकम μ1 by μ2 is equals to sin r. Now this angle is behaving as a incident angle, so sin r by sin I is equals to v2 by v1. Getting my point? So ये 1/2 होगा तो ये 2/1 होगा. करेक्ट. नाउ सपोज लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस path. Suppose light ray is incident on this slab. This is the glass slab. Okay. Now light ray incident on this glass slab. ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. करेक्ट. तो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. तो अपना लिटिल बिट इतना बेंड होगी, और जो जितना बेंड होती है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, डेविएशन. करेक्ट, एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ओके. नाउ नो, अगर ये मीडियम नहीं होता, सो दिस लाइट रे विल गो थ्रू दिस ब्लैक पाथ. करेक्ट. ये सीधा चली जाती है. अगर मीडियम चेंज नहीं होता, तो मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. करेक्ट. तो एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ. नाउ यहाँ पे क्या हुआ? रेयर से डेंसर में रिफ्लेक्शन हुआ, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई. अब यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. करेक्ट. तो ये लिटिल बिट अवे मूव हो जाएगी. नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट और दिस एंगल ऑफ इमर्जेंट बोथ आर इक्वल, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. करेक्ट. तो जो इमर्जेंट रे, जो रे बाहर जा रही है ग्लास स्लैब से, उसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे. और ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ये दोनों क्या हो जाती है? एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है. और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको. ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट अप टू हियर. सो जो एक्स वाई है वो क्या हो गया अपना? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ ब्लॉक. ये ब्लॉक जितना ज़्यादा थिक होगा उस पर डिपेंड करेगा. और एंगल ऑफ इंसिडेंट, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप चेंज करोगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंट चेंज होगा, तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगी. करेक्ट. तो एंगल ऑफ इमर्जेंट पे डिपेंड करेगा. म्यू ऑफ ग्लास, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे भी डिपेंड करेगा. अगर म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो लेमडा पे भी डिपेंड करेगा. करेक्ट. क्योंकि म्यू और लेमडा बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो लेमडा म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो लेमडा पे, इट मीन्स कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ विल गो टू द टॉपिक प्रिज्म. ओके, अभी देखो प्रिज्म देखेंगे. तो व्हाट इज प्रिज्म? सो ए प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेस विद ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन. देखो 5 सरफेस होती है. एक सरफेस ये हो गई हमारी, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस इसके पीछे होगी, तो 1 2 3. एक सरफेस नीचे होगी और एक सरफेस यहाँ पे पीछे है. तो टोटल वी है 5 सरफेस. तो प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, मीडियम बाउंड, और इट हैज़ 5 प्लेन सरफेस विद ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन. तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? ये ट्रायंगुलर होता है. करेक्ट. इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? दिस इज ट्रायंगुलर. सो अपन नॉर्मली बुक्स के अंदर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना. इसके एक पार्ट को दिखाते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे ये जो अपना ए है, ये वाला जो एंगल है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. करेक्ट. सो हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो ए हो गया, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया. करेक्ट. सो दिस सरफेस एंड दिस सरफेस बोथ आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर प्रिज्म. सो ये वाली सरफेस और इसके पीछे वाली सरफेस, दोनों सरफेस कैसे होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. करेक्ट.
है ना। तो अभी देखते हैं कि लाइट रे, सपोज करो ये इंसिडेंट लाइट रे ये किसी प्रिज्म पे स्ट्राइक की यहाँ पे, ठीक है, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, आई हो गया, और ये अपनी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। देखो नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस से, तो यहाँ पे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाया है नॉर्मल ने, यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एंगल बनाया है क्यू पॉइंट पे, तो पॉइंट पी पे भी 90, पॉइंट क्यू पे भी अपन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, करेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गई, इसने स्ट्राइक किया, तो रेयर मीडियम से रे कहाँ पे जा रही है, डेंसर मीडियम के ऊपर, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट। सो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ पे मूव करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल अगर ये लाइट, ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये लाइट सीधा चली जाती, ऐसे आती और सीधा ऐसे चली जाती, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो इट विल बेंड दिस, सो दिस विल बेंड एंड विल गो लाइक दिस स्ट्रेट। तो ये किससे स्ट्रेट जाएगी, बेस से, तो बेस के पैरेलल हो जाएगी, दिस एंड दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लाइट रे ऐसे गई यहाँ पे, करेक्ट, ऐसे लाइट रेज आके फिर अगेन यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, सो अगेन लाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो क्या होगा, रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मली क्या होता, लाइट ऐसी सीधी चली जाती, करेक्ट, बट लाइट विल बेंड, वाई, बिकॉज डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसीलिए नॉर्मल से अवे चलेगी। तो कितना अवे गई, इतना अवे, सो ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। सो ये वाला डेल्टा 2 या ये R2 एक ही बात है ना, करेक्ट, दिस एंगल सॉरी दिस एंगल इज सेम, करेक्ट। नाउ मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ इधर, ओके। अभी देखो ये जो बाहर जाती है तो उसको बोलते हैं अपन इमर्जेंट रे, करेक्ट। तो ये अपना हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई कितना रिफ्लेक्ट हुआ, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस से देखें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, और ये जो डेविएशन हुआ वो डेल्टा 1, कितना डेविएट हुए, इतना डेविएट हुए, सीधा यहाँ जाती, अब यहाँ से गई है तो इतना डेविएट हुए डेल्टा 1, है ना। फिर यहाँ पे कितना डेविएट हुए, सीधा जाती बट इतना डेविएट होगी, तो ये अपना होगा डेल्टा 2, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना R2, करेक्ट। नाउ अभी अपन चलते हैं कि डेविएशन फर्स्ट एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा इसके पूरे एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट, वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल I1, आई कॉल दिस एंगल I1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस R1, भाई डेल्टा 1 प्लस R1, करेक्ट। सो I1 इज डेल्टा 1 प्लस R1। I2 क्या होगा, ये वाला जो I2 है या इमरजेंट एंगल है कुछ भी बोलो उसको, ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा 2 प्लस R2 के इक्वल होगा। सो I2 इक्वल्स टू डेल्टा 2 प्लस R2। सो R को उस साइड भेजूंगा इक्वल टू के, सो डेल्टा विल बिकम I1 माइनस R1, और R2 को उधर भेजूंगा, R1 को इधर भेजा, R2 को उधर भेजूंगा तो डेल्टा 2 इक्वल टू I2 R2। ये वाली इक्वेशन समझ आई यहाँ तक, अपन ने बस कुछ नहीं किया, अपन ने R को इधर भेजा है, करेक्ट। सो डेल्टा विल बिकम डेल्टा 1 इक्वल्स टू I1 R1 और डेल्टा 2 बिकम I2 R2, करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ टोटल डेविएशन देखो इस वाले पॉइंट में, दिस डेविएशन फर्स्ट डेविएशन सेकंड, दोनों डेविएशन को मिलाने पे टोटल डेविएशन बनता है जो इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, करेक्ट। टोटल डेविएशन विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, तो टोटल डेविएशन को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो टोटल डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो अपना डेविएशन डेल्टा 1 कितना है अपना, अपन ने डेल्टा 1 सोल्व किया I1 प्लस R1, तो यहाँ पे I1 प्लस R1 पुट किया। डेल्टा 2 अपना कितना है I2 प्लस R2, तो यहाँ पे I2 प्लस R2 पुट किया है, करेक्ट। मैं I को पास रख लेता हूँ तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, और R को पास कर देता हूँ तो माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा, करेक्ट। अभी मैं क्या करता हूँ I1 प्लस I2, फिर R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, करेक्ट। तो जो डेल्टा होगा अपना, डेल्टा होगा वो कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2, इतना समझ आया, ये दिस आई विल टेल यू हाउ, इतना समझ आया ना, करेक्ट, ओके। अभी देखो अपन ये देखते हैं APQN, ये अपना क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेटर बन रहा है। देखो ये एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर लिया है, करेक्ट। सो APNQ ये अपना क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटर हो गया, जिसमें P और Q कितना है 90 है, तो ये 90 है, ये 90 है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 होगा ना, बिकॉज टोटल 360 होता है,
उसमें से 90 ये हो गया, 90 हो गया, 180 तो खत्म हो गए, बाकी बचा 180, वो किसके इक्वल होगा? सो एंगल ए प्लस एंगल एन, सो राइट एंगल ए प्लस एंगल एन कितना होगा? 180 डिग्री होगा, करेक्ट। यहाँ तक समझ आया? सो एंगल एन कितना होगा? ए उधर चला जाएगा माइनस में, तो एंगल एन इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, करेक्ट, बिकॉज दिस एंगल 180 है, बिकॉज 180 तो ये हो गए, बाकी बचा 180, दोनों ये मिलके होंगे, करेक्ट। तो अपने एंगल एन इक्वल्स टू कितना होगा? 180 माइनस एंगल ए। यहाँ तक ये इक्वेशन समझ आई? ओके, अभी देखो इन ट्राइंगल पी क्यू एन, अब देखो ट्राइंगल पी क्यू एन देखते हैं, दिस पी क्यू एन, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल, करेक्ट। इस वाले ट्राइंगल में देखो एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, सो दिस एंगल आर वन, दिस एंगल आर टू प्लस दिस एंगल एन, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल एन कितना होगा? 180 डिग्री होगा, करेक्ट, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, करेक्ट। एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, अब अपन ने एंगल एन कितना निकालना है यहाँ पे? एंगल एन इक्वल टू 180 माइनस ए, तो एंगल एन की जगह मैंने पुट किया 180 माइनस एंगल ए, करेक्ट। सो आर वन प्लस आर टू प्लस 180 माइनस एंगल ए इक्वल्स टू 180। अब देखो ये 180 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 180 कैंसिल हो जाएगा, सो इट मीन्स एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू माइनस एंगल ए इक्वल्स टू 0। सो एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, इधर देखो ये मैंने क्या बोला? एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू माइनस एंगल ए इक्वल्स टू 0 होगा। सो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू, ये ए उधर चला जाएगा इक्वल टू में, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो एंगल ए कितना है अपने पास? आर वन प्लस आर टू है, करेक्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू। एंगल ए किसके इक्वल होगा? दोनों रिफ्लेक्टिव एंगल के इक्वल होगा। तो क्या मैं एंगल यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन देखो, इस वाले इक्वेशन में अपन ने निकाला है कि एंगल आई वन प्लस एंगल आई टू माइनस एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, वो दोनों डेविएशन एंगल के इक्वल होंगे, करेक्ट। नाउ आई वन आई टू को मैंने सेम रखा, आर वन और आर टू की जगह क्या मैं एंगल ए पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये इस इक्वेशन से सोल्व किया है, करेक्ट। नाउ एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इस एंगल ए को मैं इधर सेंड कर देता हूँ, भेज देता हूँ, करेक्ट। सो एंगल आई वन प्लस एंगल आई टू कितना हो जाएगा? डेल्टा प्लस ए। ये वाला इक्वेशन समझ आई ना? सो रिमेंबर वन थिंग, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एंगल ए किसके इक्वल होता है? आर वन प्लस आर टू, करेक्ट। तो जो एंगल ये ए है, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, this is equals to this angle. I'll explain you again. Now this angle A is equals to this angle and this angle. This is the R1, this is the R2. तो R1 R2 के बराबर क्या होगा? एंगल A बराबर होगा, जो अपन ने प्रूव भी कर दिया, करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? तो अपन को पता है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो अपन ने प्रूव किया है, आई वन प्लस आई टू माइनस ए। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ ए क्या है? एंगल क्या है? ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसका इट मीन्स, और आई वन आई टू क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसका मतलब जो डेविएशन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, करेक्ट कर रहा है, फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है। नाउ एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ए पे फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, करेक्ट। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा, ये मैंने फॉर्मूले से दिखा दिया। ना वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा, भाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो ज़्यादा बेंडिंग होगी, करेक्ट। और अपन को पता है म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। इसका मतलब कि म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला से पता चल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला से पता चल रहा है अपन को एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा, और स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज यू नो दिस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, करेक्ट। यहाँ तक समझ आया ना? ओके, गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी देखो अपन एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में अपन ने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ देखा है ना। तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन स्लोली एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कम होगा, एक मिनिमम पॉइंट तक आएगा। तो जिस धीरे धीरे बढ़ाने पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हो रहा है ना। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उस मिनिमम पॉइंट को रीच करने के बाद में आप जैसे और बढ़ाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो अचानक से क्या होगा, सडनली क्या होगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो स्टीप कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वाला जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आया है ना, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बढ़ाने पे, तो इसको अपन बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, करेक्ट, दिस पॉइंट पे। सो दिस ग्राफ टेलिंग अस
दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, करेक्ट। सो एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या होगा, जो एंगल आई और एंगल ई को अपन आई भी बोल सकते हैं, तो जो दोनों एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो अपन को पता है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2 - A, करेक्ट। मैंने क्या बोला कि मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्या होगा, एंगल I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो I1 दोनों इक्वल, I1 I2 दोनों इक्वल हो गए, तो I + I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, तो 2I - A। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, 2I - A। ये वाला समझ आया ना। और स्मॉल एंगल के लिए अपन बोल सकते हैं, दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, कि स्मॉल एंगल के लिए μ - 1 × A, करेक्ट। ये वाला समझ आया ना कि 2I - A कैसे हुआ, करेक्ट। क्यों हुआ, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसीलिए दिस एंगल विल बिकम इक्वल, करेक्ट। अब देखो जो वायलेट लाइट है वो ज़्यादा डेविएट होगी एज कम्पेयर टू रेड लाइट के, करेक्ट। तो जो म्यू होगा वो वायलेट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड लाइट के, गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब कि जो म्यू है वो डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो आप किस पे डिपेंड करता है, कौन, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जो मैंने आपको बताया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा, तो म्यू बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, और प्रिज्म का एंगल बढ़ाने पे, ये वाला एंगल बढ़ाने पे भी डेविएशन बढ़ता है, और वेवलेंथ बढ़ाने पे डेविएशन कम होता है, करेक्ट। सो रिमेंबर दिस रिलेशन। इसीलिए जो बोलते हैं अपन देखते हैं कि जो लाइट रे जो पास करती है वाइट लाइट प्रिज्म से, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट लाइट का, क्योंकि वायलेट लाइट की क्या होती है, डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, करेक्ट। क्योंकि वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स वाई जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वो किसका होगा, वायलेट लाइट का होगा, करेक्ट। और रेड लाइट का सबसे कम होगा, करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट अप टू हियर, है ना। तो इसका मतलब रेड लाइट का जो डेविएशन है वो सबसे कम होगा, इसका मतलब म्यू है वो सबसे कम होगा। तो म्यू अपन को पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर इसका म्यू सबसे कम है तो इसका मतलब रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब V = f λ, अपन को पता है V = f λ से अपन बोल सकते हैं कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, इसीलिए रेड लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और वायलेट लाइट की स्पीड होती है वो मिनिमम होती है। गेटिंग माई पॉइंट अप टू हियर, ओके, वेरी गुड। नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अभी देखो अपन देख रहे हैं कि जो लाइट रे है, आपने देखा होगा कि लाइट कभी कभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं नॉर्मल पोजीशन से। आपने पॉन्ड में देखा होगा कि पॉन्ड में आप किसी कॉइन को पुट करोगे, सपोज दीजिए कॉइन, ओके, तो वो अपन को नॉर्मल उस पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है, या उसका बॉटम है वो भी अपन को ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो सपोज करो ये लाइट इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने पे जो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन ये है, तो ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करके और ये लाइट ऐसे जा रही है, करेक्ट। अब नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर मीडियम है, तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, नॉर्मली लाइट ऐसे जाती, बट लाइट थोड़ा बेंड कर गई, वाई, बिकॉज इट मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसीलिए। नाउ अब ये जो डेविएट लाइट है, जो बेंड हुई लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारी आइज़ पे रीच करेगी, ये हमारी आई होगी, करेक्ट। तो आइज़ पे रीच करेगी तो हमारी आइज़ को क्या लगेगा, अपन इसको जब फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो अपन हमारी आइज़ को लगेगा कि ऑब्जेक्ट है, जो रेज है वो यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो हमारी आइज़ को लगेगा कि पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, बट हमारी आइज़ को लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ क्या होगी, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ ये होगी ए ओ हो गई। सो ए ओ हमारी क्या होगी, रियल डेप्थ हो गई, ये हो गई रियल डेप्थ। बट एक्चुअली हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ए आई, ये आई पॉइंट बोल देते हैं, तो एक्चुअली अपन को दिखाई कहाँ दे रहा है, ऑब्जेक्ट ए आई पे, तो ए आई अपनी क्या होगी, अपरेंट डेप्थ होगी, ठीक है। तो रियल डेप्थ क्या होगी, ए ओ, और अपरेंट डेप्थ क्या होगी, ओ। समझ आया ना। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये अपरेंट डेप्थ हो गई, ये वाली रियल डेप्थ होगी। तो देखो ऑब्जेक्ट हुआ वो शिफ्ट कितना हुआ, चलो इसको मिटा देते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना। नाउ अभी देखो कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे
शिफ्ट अपना ऑब्जेक्ट यहाँ तक हो गया, तो इतनी जो डेप्थ है इतना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं शिफ्ट। इतना समझ आया? सो ये उसका रिफ्लेक्टर इंडेक्स अपन ने कुछ म्यू ले लिया, करेक्ट। नाउ अब देखो ट्राइंगल, अभी अपन आपको पता है ट्राइंगल ए ओ बी है ना, जो साइन वगैरह का रिलेशन आपको पता होगा आई थिंक, है ना। अभी देखो ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी देखते हैं। ये ट्राइंगल ए, ये ओ, ये वाला पॉइंट ओ हो गया, तो ए ओ बी, यानी ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, इस फुल वाले ट्राइंगल की बात करें, तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, करेक्ट। नाउ अभी इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्यों 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन आई देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपने पास क्या होगा, ए बी, ये वाली डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपने पास क्या होगा, बी ओ, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी हाइपोटेनस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन आई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, करेक्ट। तो साइन आई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड ट्राइंगल देखते हैं अपन, है ना, इसको प्रॉपर कर लेते हैं पहले। नो, सेकंड वाला ट्राइंगल देखते हैं अपन, है ना। सेकंड वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो ए आई बी, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ए आई बी। सो ए आई बी के अंदर क्या होगा अपना, ट्राइंगल ए आई बी के अंदर साइन आर होगा, ये वाला एंगल कितना है, साइन आर, तो साइन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी भी ए है अपने, ए बी है अपने पास, सो ए बी अपन इस बार अपना हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस अपना हो गया बी आई हो गया, ये वाला बी आई हो गया, करेक्ट, बी और आई हाइपोटेनस हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ साइन आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन आई बी, करेक्ट। यहाँ तक समझ आया ना। तो अपन को क्या पता चला, साइन आई अपॉन साइन आर, अपन को पता है वो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, करेक्ट, इतना पता है। तो देखो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपने पास कितना है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी, और साइन आर वो कितना है, ए बी अपॉन आई बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल गो अप, ए बी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम आई बी अपॉन ओ बी, करेक्ट। सो आई बी अपॉन ओ बी। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस डायग्राम में अपन नॉर्मली देखते हैं, देखो आई बी अपॉन ओ बी, देखो गिव मी 1 मिनट्स, ओके। अभी देखो जो ये पॉइंट आई है, तो जो आई, ये अपना पॉइंट हो गया आई ए, और ये ओ ए हो गया, ठीक है। नाउ दिस आई बी अपॉन ओ बी, करेक्ट। तो दिस विल बी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी अपनी, अपर एंड डेप्थ होगी, करेक्ट। ये वाली डिस्टेंस अपर एंड डेप्थ होगी, ये वाली होगी रियल डेप्थ होगी, करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू, ये अपन को पता है, और साइन आई बाई साइन आर ये अपना ये भी आया, करेक्ट। यहाँ से अपन को पता है आई बी अपॉन ओ बी, इतना समझ आया, करेक्ट। अभी देखो जब अपन इसको पास से देखेंगे, इफ दिस डिस्टेंस बिकम लेस, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, पॉइंट के बीच की, इस डिस्टेंस को कम कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो आई बी और ओ बी है इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना, आई बी की जगह आएगा अपने ए आई, है ना, आई ए, और ओ बी की जगह आएगा ओ ए, करेक्ट। तो अपन आई ए अपना क्या होगा, देखो कंफ्यूज मत हो ना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू ए जी, करेक्ट, जो किसके इक्वल है, आई ए और ओ ए के इक्वल है। अब आई ए अपना क्या है, आई ए अपना है अपर एंड डेप्थ, करेक्ट, और ओ ए अपना क्या है, रियल डेप्थ। देखो ये जो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये अपना क्या है, अपर एंड डेप्थ, और ये फुल डिस्टेंस अपनी क्या है, यहाँ तक पूरी डिस्टेंस अपनी क्या है, ये अपनी होगी रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपनी क्या होगी, रियल डेप्थ होगी ए ओ, अपर एंड डेप्थ क्या होगी आई बी। सो ए ओ की जगह मैंने आई ए की जगह अपने क्या रखा, अपर एंड डेप्थ, और ओ ए की जगह अपने क्या लिखा, रियल डेप्थ, करेक्ट। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, करेक्ट। अब अपन इसको देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे, सो दिस विल बिकम उल्टा, सो दिस विल बिकम ओ ए अपॉन आई ए, तो दिस ऑल्सो बिकम उल्टा, सो रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ। तो मैं बोल सकता हूँ कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ। तो अपने पास अपर एंड डेप्थ कितनी आ जाएगी, अपर एंड डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये अपने पास क्या आ जाएगी, अपर एंड डेप्थ आ जाएगी।
यहाँ तक समझ आया? ओके। हाँ शिफ्ट, देखो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट है वो कितना हुआ, शिफ्ट अपन को कितना पता है कि इसको देखो साफ कर देता हूँ मैं सही से ना। सी देखो ये वाला जो पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट ओ है, तो ये क्या है अपना रियल डेप्थ, और ये वाला पॉइंट अपना आई है। तो शिफ्ट अपना कितना हुआ, शिफ्ट अपना हुआ ए ओ माइनस ए आई। देखो इस डिस्टेंस में, फुल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा ये वाली डिस्टेंस, तो ये इतना वाली डिस्टेंस बचेगी। करेक्ट, यही तो अपना शिफ्ट हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया। करेक्ट, तो ये जो इतना शिफ्ट हुआ है, ये कितना शिफ्ट हुआ है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। भाई ये पूरी रियल डेप्थ है और ये इतनी अपरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ करेंगे तो अपने पास शिफ्ट मिल जाएगा। सो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, वो क्या हुआ अपना शिफ्ट हुआ है। करेक्ट, ये अपना शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट हुआ अपने पास रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। करेक्ट, तो शिफ्ट के लिए अपन बोल सकते हैं, शिफ्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। करेक्ट, तो शिफ्ट अपना कितना हुआ रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। अब देखो अपरेंट डेप्थ की जगह में क्या क्या लिख सकता हूँ, अपन ने रिलेशन निकाला है रियल डेप्थ अपॉन म्यू। करेक्ट, तो शिफ्ट की जगह में सॉरी अपरेंट डेप्थ की जगह में लिख सकता हूँ कि अपना क्या हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, जो अपन ने यहाँ से निकाला है म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए। करेक्ट, ये क्या आ गया अपना रियल डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ को अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो रियल डेप्थ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अपना जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट का फॉर्मूला अपना क्या बना, अपना शिफ्ट का फॉर्मूला बना है रियल डेप्थ माइनस वन अपॉन म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये अपना शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। तो वो तुम्हें क्वेश्चन में रियल डेप्थ देगा। नॉर्मली देखो शिफ्ट को कैसे याद रखना है, शिफ्ट को याद रखना है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, कुछ नहीं बस इतना याद रखना है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। बस आपको अपरेंट डेप्थ याद रखनी है। अपरेंट डेप्थ क्या होती है अपने पास, रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू होती है। बस यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ अपन को मिली है उसकी जगह देखो शिफ्ट कितना होगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। बस अपरेंट डेप्थ अपन को पता है रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू होती है, तो यहाँ पे रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ की जगह रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू पुट करोगे आप। अब देखो दोनों तरफ अपने पास रियल डेप्थ होगी वो दोनों में आ रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं रियल डेप्थ को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और ये किसका है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखना शिफ्ट कितना होता है अपना रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट डेप्थ का आप फॉर्मूला लर्न कर लेना। सो विल गेट दिस आंसर प्रॉपरली। ओके, नाउ सेम केस देखो, अभी अपन ने इस केस में अपन ने क्या देखा, इस केस में अपन ने देखा कि लाइट है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अपन रेयर मीडियम से देख रहे हैं। करेक्ट, तो जब रेयर मीडियम से देखेंगे तो सिर्फ इतना होगा। करेक्ट, तो एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि जब अपन कहाँ पे वी आर ऑन द डेंसर मीडियम। करेक्ट, वी आर ऑन द डेंसर मीडियम है ना, वी आर ऑन द रेयर मीडियम। हम जब रेयर मीडियम से देखेंगे तो जो अपरेंट डेप्थ होगी वो रियल डेप्थ से कम आ रही है। करेक्ट, बिकॉज देखो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या है, ये वाली अपरेंट डेप्थ है, ये फुल वाली क्या है रियल डेप्थ है। तो जब अपन रेयर मीडियम से देखेंगे तो अपरेंट डेप्थ होगा वो छोटा आएगा एज कम्पेयर टू रियल डेप्थ बड़ा होगा। करेक्ट, नो यहाँ तक समझ आया। जब अपन अंदर से देखेंगे बाहर की तरफ, सपोज करो यहाँ पे कोई मच्छी या फिश है वो बाहर से देख रही है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम जो अपरेंट डेप्थ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ ऊपर दिखाई देगा। तो इस बार क्या हो जाएगा अपरेंट डेप्थ अपनी सरफेस से ज़्यादा हो जाएगी, ये रियल डेप्थ होगी, और अपरेंट डेप्थ ये हो जाएगी अपनी अपरेंट डेप्थ। करेक्ट, तो उस केस के अंदर अपनी क्या हो जाएगी अपरेंट डेप्थ बड़ी हो जाएगी। तो अपन उस केस में शिफ्ट को कैसे देखेंगे, शिफ्ट उस केस में देखेंगे अपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। गेटिंग माई पॉइंट। सो बस उस केस के अंदर क्या हो जाएगा अपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। दिस केस यू विल रिमेंबर। ओके, थैंक यू। if you like this video then share. Okay, thank you so much.